students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 8, which is chapter number 7 about links, frame and images in HTML5. So first of all, we have to start the chapter with the very first topic, that is linking in HTML. So while surfing the internet, यानी कि जब हम इंटरनेट सर्व करते हैं, so हमने देखा बहुत सारे एक ऐसे हाईलाइटेड वर्ड या इमेज होते हैं, जब आप उनको क्लिक करोगे सो आपको वो एक दूसरे वेब पेज या डॉक्यूमेंट पे लेके जाता है. एंड ये जो लिंक होते हैं जो आपको दूसरे पेजेस पे लेके जाते हैं, दे आर कॉल्ड हाइपरलिंक. अब एक हाइपरलिंक क्या है? इट इज अ हाइलाइटेड टेक्स्ट ऑन इमेज दैट शोज द एड्रेस ऑफ सम page or document. When we click any hyperlink, the link document opens. So hyperlink एक ऐसा highlighted text और image होता है जो क्या करता है, किसी भी वेब पेज या डॉक्यूमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है. एंड जब आप किसी हाइपरलिंक पे लिंक करोगे, क्लिक करोगे, सो वो लिंक आपको उस डॉक्यूमेंट पर लेकर जाएगा एंड द न्यू डॉक्यूमेंट विल ओपन. नाउ टाइप्स ऑफ लिंकिंग इन HTML. सो HTML में बेसिकली दो टाइप्स की लिंकिंग होती है, दैट इज एक्सटर्नल लिंकिंग एंड द अदर इज इंटरनल लिंकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल लिंकिंग. So external linking involves connected two different web pages. External linking का मतलब होता है दो different web pages को connect करना. यानी कि जब आप किसी hyperlink पर click करते हो, एक new web page जो है जिससे वो hyperlink linked होता है, वो आपके browser window पर display होगा. And आप pages को same directory या किसी दूसरे page पर क्या कर सकते हो, link कर सकते हो over the internet. Next we have internal linking. Internal linking involves linking various sections of the same web page. Same web page के different sections को link करना is known as internal linking. And ये जो linking है, इस तरीके की linking useful होती है जब आपका एक web page बहुत ज़्यादा long होता है. इसके थ्रू यूजर जो है desired section जो है किसी भी पेज का, उसे बहुत quickly view कर सकता है. Okay, so internal linking as a bookmark serve करती है किसी भी एक वेब पेज के particular segment के लिए, and internal linking is a two-step process. Now next we have anchor tag. So anchor tag is used to create hyperlink in a web page. एक web page पे hyperlink को create करने के लिए anchor tag का use किया जाता है, जो कि आपका एक container tag होता है. यानी कि कोई भी text या image जिसको आप close करोगे within opening A and closing A tag, वो आपको as a hyperlink क्या होगा, display होगा. href attribute of anchor tag. So ये attribute क्या indicate करता है, आपके link के destination को. Okay, ये define करता है उस document को जिससे आपका link lead करेगा. And the syntax which we have to use is this. So यहाँ पे जो आपके value है, ये value क्या है, आपका absolute URL है, यानी कि ये दूसरी website को point करेगा. And एक relative URL जो होता है, ये आपका उस file को point करता है which is within a website. ठीक है? And link to an email address. Now first of all we have to type this following HTML code and then we have to save the file with the name os.html. So ये आपको क्या करना है, इस HTML कोडिंग को टाइप करना है and then you are going to save it. Okay, चलो. Then what you have to do, यहाँ पे आपको again given है, what is it, CLI list item एक GUI interface based operating system है जहाँ पे graphics का use किया जाता है communicate करने के लिए with the computer. Then we have LI जिसमें आपका what you see is what you get interface यूज किया जाता है. दैट मीन्स आपकी जो स्क्रीन पे अपीयर होता है वही आपका सेम आउटपुट भी होगा. देन लिस्ट आइटम आपको हेल्प करता है टू डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम. देन इट इज़ अ वेरी यूजर फ्रेंडली, यानी कि ईजी टू लर्न एंड यूज होता है. ओके, चलो. सो अगेन यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग कोड इन HTML. ओके, एंड देन यू हैव टू सेव द फाइल विद द लिंक दैट इज link.html. ओके, नाउ CSS and link. अब CSS and link को हम डिस्कस करेंगे. तो CSS affects the link differently depending on the state they are in. So CSS क्या करता है, लिंक को differently affect करता है depending on the state they are. यानी कि कौन सी स्टेट में वो है, उस पर एक ये फैक्टर डिपेंडेंट है कि आपकी CSS कैसे लिंक को अफेक्ट करेंगी. ओके, अब हम डिवाइड कर सकते हैं लिंक स्टेट को 4 कैटेगरीज में. दैट इज अ लिंक, दैट इज अ नॉर्मल अनविजिटेड लिंक. अगर विजिटेड है तो वो लिंक वो है जो यूजर ऑलरेडी विजिट कर चुका है. होवर मीन्स व्हाट, एक ऐसा लिंक जहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, अपने माउस को सिर्फ मूव कर रहा है ओवर इट. एंड एक्टिव मीन्स व्हाट, एक ऐसा लिंक जो पर्टिकुलर मोमेंट में अभी क्लिक किया गया है. सो आप इन लिंक स्टेट को कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड कलर्स उन पे अप्लाई करके. Again, you have to type the following code in HTML and then you have to observe the link will be like this. The link as a button. So link को as a button भी use कर सकते हैं, यानी कि what आप किसी भी link को CSS styling का use करके as a button use किया जा सकता है. And for that you have to type this following code in HTML and you will get the result like this. Okay? चलो.
Now next we have inserting images. So text के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो ग्राफिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग, चार्ट, मैप या फोटोग्राफ्स हैं उनको भी डिस्प्ले कर सकते हो ना वेब पेज. सो इमेज फाइल क्या करती है, इमेज फाइल फॉर्मेट जो आपके मोस्ट वेब ब्राउजर के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग GIF दैट इज ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एंड PNG दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. सो इमेज टैग का यूज किया जाता है एक HTML वेब पेज के अंदर इमेजेस को ऐड करने के लिए. एंड ये एक एम्प्टी टैग है, यानी कि इसमें क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं टू बी स्पेसिफाइड विद इट. ओके, सो नाउ दे हैव गिवन यू द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग. फर्स्ट ऑफ ऑल SRC, ये एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है किसी भी इमेज जिसको आप डिस्प्ले करने वाले हैं उसके URL या पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए. देन वी हैव हाइट एंड विड्थ, ये एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है इमेज के हाइट एंड विड्थ को पिक्सेल्स में स्पेसिफाई करने के लिए. देन वी हैव अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है इमेज को अलाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन्स और द इनलाइन टेक्स्ट. सो यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट वैल्यू को यूज करेंगे इमेज को अलाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन, एंड टॉप या मिडिल बॉटम यूज किया जाता है इमेज को अलाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इनलाइन टेक्स्ट. देन वी हैव ऑल्ट का यूज किया जाता है किसी भी एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए जो कि ब्राउजर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा अगर आपकी इमेज डिस्प्लेड नहीं हो सकती है. एंड बॉर्डर का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, आपके एक इमेज के अराउंड बॉर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए, बॉर्डर की जो विड्थ होगी उसको स्पेसिफाई करने के लिए. सो अगेन आपको ये जो कोड यहाँ पे गिवन है, यू विल गोइंग टू टाइप दिस कोड इन HTML and then you will observe the result like this. Okay, again they have given you a code which you have to type and then the result will be this. चल, now next is images as link. So एक image को as a hyperlink भी हम use कर सकते हैं to the another document. ठीक है, for that you are going to type this code in HTML and save the file with the name image.html. So you will get the result like this. Okay, चलो. Now again type the following HTML code in HTML and अब आप इसको सेव करोगे imagelink.html के नेम से and the result will be like this. Next is frames in HTML5. So frames क्या है? Frames are a way of organizing your website. आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, that particular way is known as frame. तो फ्रेम अनेबल करता है यूजर को कि वो एक पेज को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड फ्रेम अलाउ करते हैं मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट को एज एन इंडिपेंडेंट विंडो प्रेजेंट करने के लिए विद इन वन ब्राउजर विंडो. सो कैसे फ्रेम्स को क्रिएट किया जाता है, एक HTML5 में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, फ्रेम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं. आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई करता है इनलाइन फ्रेम को, एंड इनलाइन फ्रेम को यूज किया जाता है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को एम्बेड करने के लिए करंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है, सो क्या क्या एट्रीब्यूट्स है आई फ्रेम टैग के? नंबर 1 इज सोर्स. सो सोर्स आपका एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट के पाथ को स्पेसिफाई करते हो जो आपके इनलाइन फ्रेम के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए. देन इज हाइट एंड विड्थ. तो ये एट्रीब्यूट्स आपके यूज किए जाते हैं इनलाइन फ्रेम्स के साइज को कंट्रोल करने के लिए. ओके, सो यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग कोड इन HTML like this and you will get the result like this. Okay, then we have border in iframe. So एक inline frame को आप display कर सकते हो border के साथ भी. Syntax will be this. Properties भी इसमें आप individually apply कर सकते हो like border, width. ओके, यहाँ पे वैल्यू जो है, वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, थिन, थिक, मीडियम, या कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि आपके पिक्सेल्स में इंडिकेट करी जाएगी. फिर आप बॉर्डर स्टाइल भी यहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ पे वैल्यू आपकी नन, हिडन, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट. सो किसी भी तरीके का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल जो है. एंड बॉर्डर कलर की भी वैल्यू आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ तो आप नेम ऑफ द कलर वहाँ पे टाइप करेंगे, या फिर जो उस पर्टिकुलर कलर की हेक्साडेसिमल कोडिंग होगी यू हैव टू टाइप ओवर देयर. So first of all, type the following code in HTML and then get the result like this. Okay, chalo. The chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.